इधर इसको रखो एंड एंड अगर कुछ कर सकते हैं दे दिया, वी कैन डिस्प्ले इट ऑन इन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफिस ऑल्सो। जो हमने बाकी अपने अवार्ड देने से लगा हुई चाहिए। These are very, very good. Very good. I've shown this. क्या चीज़ है सर जी? ये है गैस टरबाइन में लगने वाले ब्लेड्स हैं। अच्छा। तो ये इससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो बिजली प्रोड्यूस होती है, वो गैस टरबाइन जनरेट करता है, टरबाइंस जनरेट करता है। तो ये उसका एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। इंडिया में हमारी कंपनी अकेली है जो बनाती है, और हम आज यूरोप और चाइना को इससे बहुत कंपटीशन है। तो ये मार्केट पूरा चाइना और यूरोप डोमिनेट करता था। तो इंडिया से हमने कोशिश करना चालू किया, तो इंडिया से हम एक ही प्लेयर हैं। वेरी गुड। और मतलब अभी फॉरेन कंट्री में भी इसका सप्लाई शुरू हो गया है? हमारा 80% बिजनेस आज एक्सपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट हो रहा है। तो मंत्री जी ने कुछ कहा नहीं? मंत्री जी ने कंग्रेचुलेट कहा है। उन्होंने कहा है कि उसके बाद में हमसे बात करेंगे, मतलब दे विल कनेक्ट, उनकी टीम कनेक्ट करेगी हमसे। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयर करते हैं तो हैंडशेक कीजिए, अगर मिनिस्टर नहीं करते हैं तो आप सिर्फ नमस्ते ही कीजिए, इनिशिएट मत कीजिए हैंडशेक करने। नहीं, हम ऑनलाइन ऑनलाइन इस पे कौन से उस पे ये नंबर का where you can check the TDS of water and the pH of, and it has an IoT system installed in it, with the help of which you can predict maintenance in advance. Like if the maintenance is due 1 week before, you can get the alert, you will have to take it straight. And if there is any fault in the machine, like leakage or change in the filter, so it will raise the ticket. It works online. If you're not near the machine, you can check it online. We share you the dashboard. What is the pH of the water that is machine gives? Ma'am, pH is between 7.5 to 8.5. Yes, ma'am. It provides us alkaline. Equalizer. Alkaline is below 7.5. No, ma'am. Below 7.5, we get acidic water. And above 8.5, it's basic. In between this parameter, it is alkaline. Because our body pH is also around 7. Ma'am, our body maintains it between 7.5 to 8.5. That's why we need water with. But there are machines which provide pH much above 8.5 also. No, basically that's not good for health. We work on a TDS of 80 to 120, so it dissolves pH is properly. fine, but pH. And pH between 7.5 to 8.5. This is the perfect alkaline water in between this parameter. And apart from alkalinity, any other features? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Basically, ma'am, we are towards eliminating plastics. So the other purification units have the you might have seen they have the 20 liters jars on their top, but we don't prefer that. We have 8 stages of purification. First is multigrade, then activated carbon, then 20 ppm, then 5 ppm, then UV RO, then remineralization, then ozonation. Most of the machines have 3 to 4 purification stages. Mineralization. So you add minerals also. Yes, ma'am. We have That's natural. artificial. No, ma'am. We have natural minerals filters, organic filters in between. What's the cost of this machine? Ma'am, it's 1,56,000 with 50 liters per hour, and we can customize it to 100 also. Thank you. Basically, ma'am, we have our in-house R&D team and manufacturing team, and we provide the glass bottling plants to hospitalities like the Pan India. We have our installations in JW Marriott and Lars, both the Conrads in India. Travel today, see enriching experiences. And now we are also we have our installations in Amane. Plastic water destroys the environment and it also affects our health. Ma'am, Water can provide
It's ultra premium alkaline mineralized water system delivered to you without plastic water system. Our mobile water makes bespoke ultra premium water sustainable. Proprietary IoT technology allows us to monitor each and every drop of water is monitored in real time. Chip X5 platform is the world's first and only automated glass water bottling plant for hospitality. The X5 unit for large properties. और सर मैं आपको उसका यूट्यूब का लिंक दे सकता हूँ। मैडम जी ये ड्रोन है, ये छोटे हैं जो जैसे जिससे फिल्म बनती है, कुछ फिल्म में ड्रोन यूज होता है। कुछ ड्रोन जो है मैंने पूसा में एक शूट आउट किया था, वहाँ पर जो ड्रोन था वो छिड़काव के लिए था, ज़मीन एग्रीकल्चर के लिए। ये किस उद्देश्य से बनाए गए? ये वाला जो ड्रोन है वो लाइट शो होता है जी, वो जैसे बिहार दिवस पे या फिर बीटिंग रिट्रीट, अगर आपने राष्ट्रपति भवन पे देखा होगा तो फॉर्मेशंस होती है। थोड़ा आगे चलो मैं कर देती हूँ ताकि थोड़ा दिखे। ये देखिए, तो इन ड्रोन्स के नीचे LEDs लगी हुई हैं, तो जब ये जाते हैं ऊपर तो ऐसे हम लोग कुछ फॉर्मेशंस बना सकते हैं। अच्छा बना सकते हैं जी। तो इसके लिए जैसे ये आपने बनाया, इसके लिए कितने ड्रोन का प्रयोग हुआ है? वैसे 500-600 ड्रोन्स लगते हैं। राष्ट्रपति भवन पर जो हमने किया था उसमें 1000 ड्रोन्स की फॉर्मेशन थी। ये वाला 500-600 ड्रोन्स के बीच में है। तो इसमें बहुत टेक्निक का प्रयोग होता होगा कि जैसे बिहार लिखना है। आप बताइएगा। बड़ी अच्छी बात है। ये बेसिकली आप कहाँ से इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं? इंडिया में, इंडिया से बाहर? नहीं, हम ही करते हैं। इंडिया में ही कहाँ पर? IIT दिल्ली में जिसे हमारा इंक्यूबेशन सेंटर है, वहीं से हम वहीं पर सारी मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग हम सब वहीं करते हैं, बाहर से कुछ नहीं आता। इसकी क्या कॉस्ट है मैम एक ड्रोन की? वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दिस? एक ड्रोन की कॉस्ट कितनी है सर? वैसे तो हम इन ड्रोन्स को कमर्शियल मार्केट में बेचने के लिए नहीं बनाते, हम इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो एक ड्रोन का कॉस्ट जो अगर आप देखना चाहेंगे कमर्शियल मार्केट के लिए वैसे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट इस पर लगी है वो बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी लगी है। तो ऐसे कुछ डिफाइन कॉस्ट नहीं है क्योंकि ये कमर्शियल प्रोडक्ट है नहीं अभी। फिर भी अप्रॉक्स? तो अप्रॉक्स एक ड्रोन को बनाने के लिए आप 20 से 30 हज़ार का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सब एक ड्रोन? जी। लेकिन आप मैम अभी कह रही थी तो हमने प्रोग्राम किए जैसे 500-600 ड्रोन लगे हैं राष्ट्रपति भवन में जो प्रोग्राम लिया, जब भी आप करते हैं तो उतने ड्रोन में, और एक ड्रोन 20,000 के लगभग आप बोल रहे हैं। तो ये इतना मतलब आप इसको इन्वेस्टमेंट किसका है इतना? ये तो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हो गया, तो वो आपके क्या है? तो आप बाहर तो बेच भी नहीं रहे हैं, तो ये क्या अर्निंग कहाँ से आती है फिर? तो जैसे ये TDB ने इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया है तो वो देंगे? जी, TDB ने ही हमको फंडिंग करी थी। फंडिंग जो भी कराएगा वो फंडिंग करेगा जी। तो फंडिंग आपके पास तो रहेगी? इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने TDB से, IHFC से, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने हमारी बहुत सपोर्ट किया हमारे हार्डवेयर स्टार्टअप को। और रही बात रेवेन्यू जनरेट करने की, तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे इवेंट क्लाइंट्स होते हैं, जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं जो हमारे ड्रोन नाइट शोज़ को ऑर्गेनाइज करवाती हैं। तो हम वो सर्विसेज प्रोवाइड करके अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं।
आप सर कुछ कह रहे थे उनके बारे में। टेक्निकल चीज़ें हाँ, टेक्निकल जो है इसका मतलब कैसे आप इसको फॉर्मेशन देते हैं वहाँ पर, जब आप मान लिया आसमान में इसको लिखा है, आपने सामने लिखा है बी बिहार, अलग ड्रोन्स जो है अलग अलग एल्टीट्यूड पे जाते हैं, अलग अलग हेडिंग होती है उनकी। ये सारा कंट्रोल आपके पास नीचे रहेगा एक आदमी के पास ही, इसमें लॉट्स ऑफ पर्सन होंगे? ह्यूमन पावर लगती है, हाँ, मैन पावर लगेगी। हाँ, ह्यूमन पावर लगती है, कंट्रोल हमारे पास रहता है। जैसे मान लिया 100 ड्रोन यूज हो रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली कितने आदमी उसको, अराउंड 20 आदमी जो है 100 ड्रोन को संभाल लेंगे और वो फॉर्मेशन या जो भी बनाना है बना देंगे। तो अभी तक आपने क्या मतलब 1-2 बिहार जैसे आप कह रहे हैं या दिल्ली में ही आपने प्रदर्शन की हैं, ऑल ओवर इंडिया अभी तक कोई आपका 29 स्टेट या यूनियन टेरिटरी है वहाँ भी क्या आपने इस तरह से प्रोग्राम किया है? अभी हम करेंगे आगे से। अच्छा, किया नहीं, अभी स्टार्टअप है डिजिटल इंडिया बनाने की पूरी मुहिम है आपकी मोदी जी के साथ, राष्ट्रपति भवन पे और बिहार दिवस में किया है। मतलब इस तरह से किया है। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो भी आपने देखा कि अशोका होटल में एक प्रोग्राम है, उसमें ये ड्रोन का पूरी तरह से प्रदर्शनी लगाया हुआ है और सभी इंफॉर्मेशन इन्होंने दे दी है। अभी आप ड्रोन को देख सकते हैं, कोई प्रोग्राम अगर आपको लगता है तो इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2022 का सेलिब्रेशन जो है वो अशोका होटल दिल्ली में आज किया जा रहा है, जिसमें भी आपने देखा कि यहाँ पर एक पोर्टेबल एक्सरे मशीन जो है इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं। जो बिल्कुल डिसेबल आदमी हैं तो जो घर से नहीं निकल सकता है, या कोई बड़ा आदमी है जो हॉस्पिटल को ही घर में बुलाना चाहता है, तो इस एक्सरे मशीन को ले जाया जा सकता है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। हमारे बीच में सौंदर्य और नाइजू जी हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं कि कोयम्बटूर से दिल्ली में आप यहाँ आए हुए हैं, तो हमें इसको समझाएं कि किस तरह से, ताकि आम जनता भी इसको समझ सके कि किस तरह से ये काम करेगी और क्या आपका इसका मेन उद्देश्य था पोर्टेबल बनाने का। Yeah, this is a portable X-ray machine powered up to 1600 watts. So 40 kV to 90 kV we can change in the increment of 1 kV. 40 kV to 90 kV we can change. MAS is 0.01 MAS to 40 MAS. So this is actually battery operated. So in one battery we can take 50 X-rays. So in one unit we will give 2 batteries. So around 100 X-rays we can take. So in case of a patient is non-movable, if it is in home or somewhere in the medical camp, you can take this X-ray. This is less than 8 kg, less than 9 kg. So we can take the X-ray unit there, and we can one technician is required. So if we take the image and send to the doctor, so it will be very helpful to the non-movable patient or medical camp patients like that. As he said, this is a battery operated machine, and this has an inbuilt collimator. So it is around 8.5 kilos, so it can be easily portable and can be set up at anywhere. So let it be home or any camp. So you can use it anywhere as required. Thank you. टेस्ट इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये आपके माइंड में कोविड के दौरान ऐसी विचार आया होगा कि हम जो है जो पेशेंट घर में हैं और नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए ये लॉन्च किया आपने। तो इस तरह से अभी ये आपने इसको गवर्नमेंट से अप्रूवल होके सब मार्केट में आ गया है। Market by next month it will reach the market. नेक्स्ट मंथ जो है मार्केट में आप इसको लॉन्च कर देंगे। We have already got the ERBNA certificate. ओके, थैंक यू वेरी मच। आपने इस तरह से आम जनता के लिए जो दिव्यांग हैं या नहीं चल सकते उनके लिए आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है। 260 liters of water. With this, we will be regenerating. This is just still in conceptual. And water is the most important element for dialysis. Purity of it also. Yes. That's why I saw this less water is Less water. quite impressive. But this is not that model. These are future plans. Yeah. Okay. But what We have developed technology right now? right now it is common whatever dialysis machine available in the market is there. Plus we have a connectivity, cloud connectivity, which other machines are not having. So right now the live session is going on in JSS Hospital, Mysore. The patient is undergoing the treatment. We can monitor any extremities, alarm comes in that machine. We will get on this. You have the login credentials. They will get the notification. So in
that way this can be put in a rural place where nephrologists are not available. And people cannot come to city, so the machine is Yes. going, the doctors are at remote location. And we are developing home dialysis. We have started it. So this we have license to machines BL. can be sent home also at the dialysis Yes, ma'am. can be done This at is the not table. that. This is hospital model only. So But you are having a having a smaller small model. tabletop machine will come. But mobile, this can be carried on a van or Definitely, something. yes, yes. That mobile also is there. That the same model can be put into a van. That also we are. It can be taken to the rural village. Yes, but home dialysis we can just place it on a table and use it.